سوال ابھی ہمارے سامنے نہیں ہے. ہماری پارٹی کے سامنے اصول کا ہے. اگر ہمیں 2018 کے الیکشن پر اعتماد نہیں تھا تو ہمارا موقف آپ نے دیکھا. آج وہ ہمارے دوست جو اس وقت ہمارے ساتھ تحریک میں تھے، اگر انہوں نے اس انتخاب کے نتائج کو تسلیم کیا ہے تو ہم پھر بھی اکیلے ہو کر بھی کہتے ہیں کہ نہیں، غلط ہوتا ہے. تو سوچو 2018 میں غلط تھی، وہ آج 2024 میں بھی غلط ہے. عمر ایوب صاحب آپ سے سوال ہے، یہ بتائیے گا کہ آپ نے خان صاحب نے سائفر کو لہرا کے قوم کو بتایا تھا کہ یہ امریکہ کی سازش ہے کہ میری حکومت گرائی گئی. پچھلے دنوں آپ کے وفد نے امریکی سفیر صاحب کی ملاقات ہوئی، وہ بھی قوم کو بتا دیں کس پیرائی میں ملاقات ہوئی. دوسرا بہت اچھا ایک سوال پورا ہونے دیں. اسد کیسر صاحب نے بھی کہا کہ عدلیہ کے جو تنقید ہو رہی ہے ہم اس کے خلاف کھڑے ہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو بھی حکومت میں ہوتے ہیں وہ عدلیہ کے ساتھ ہوتے ہیں، جو اپوزیشن میں ہوتے ہیں وہ. جب آپ کا دور حکومت تھا تو آپ کے دور حکومت میں بھی ایسے فیصلے ہیں کہ جنہوں نے اپوزیشن نے اس پر تنقید کی اور آپ نے ساتھ دیا. کیا کہیں گے؟ سب سے پہلی بات، یہ بڑا اچھا سوال ہے، مجھے خوشی آپ نے پوچھا. سب سے پہلے سائفر کے حوالے سے، وہ اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 جسٹس صاحبان اس کو سن رہے ہیں، اور جو روزانہ کے مطلب حوالے سے وہاں پہ جو ریمارکس اور چیزیں آ رہی ہیں، تو حکومت جو ہے اس وقت وہ خود اپنی وہاں پہ قبر کھودنے میں بڑی تیز لگی ہوئی ہے. اور سائفر کا کیس جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی خود بخود دفن ہو جائے گا. دفن ہو چکا ہے، صرف اس کا ڈیسیجن باقی ہے. وہاں پہ اس کیس میں کچھ ہے ہی نہیں، اور وہ ایک بوگس کیس ہے. نمبر 1. نمبر 2، وزیر اعظم عمران خان صاحب کا واضح موقف تھا اس وقت بھی، آج بھی ہم لوگ اس کی تائید کرتے ہیں. نمبر 3، امریکن سفیر جو ہمارے پاس ہمیں ملنے کے لیے آیا تھا، وہ وزیر اعظم سے بھی ملا تھا. اسی خط کے اندر 3 اشخاص کا اس نے لکھا تھا، فورن آفس کو، وزیر اعظم کو، اسپیکر قومی اسمبلی کو، اور لیڈر آف دی اپوزیشن کو. اور وہ خط اس نے لکھا تھا کہ یہ ایک روٹین کی ملاقات ہوتی ہے مختلف جو آپ کے ریاست کے ادارے ہوتے ہیں ان کے ساتھ، ان کے جو آپ کے ایگزیکٹو کے ہوتے ہیں اور یا پارلیمنٹ کے ہوتے ہیں. تیسرا سوال کا جواب آپ کا یہ ہے کہ اس کے ساتھ جو گفت و شنید ہوئی اتفاق کے ساتھ، میرے بھائی اسد کیسر صاحب بھی اس میں موجود تھے، وہاں پہ واضح طور پہ ہم نے امریکن سفیر کو ایک بات سے باور کرایا کہ پاکستان ایک آزادانہ، ایک خود مختار ملک ہے. یہاں پہ ہم لوگ آئین اور قانون کی بالادستی چاہتے ہیں، کسی ملک کی مداخلت یہاں پہ نہیں چاہتے ہیں. آئین اور قانون کی بالادستی ہوگی تو بین الاقوامی دنیا کی جو کمپنیاں اور ادارے ہیں وہ آ کے یہاں پہ انویسٹمنٹ کریں گی، یہاں پہ سرمایہ کاری کریں گی. اور یہ چیز نہیں ہوگی تو جو مرضی آپ کر لیں، یہاں پہ آپ کی نہ انویسٹمنٹ یا سرمایہ کاری ہوگی، نہ خوشحالی ہوگی. اور اس وقت آپ دیکھ لیں کہ پاکستان کی معیشت میں جو آپ کی اندرون ملک کے جو سرمایہ کاری ہے وہ 1 سال میں 86% جو ہے وہ سکڑ چکی ہے. سر یہ فرمائیے گا کہ کیا یہ آئین اور قانون کی جو جدوجہد ہے، اس کا راستہ صرف اسٹریٹ کی تحریک اور یہ جلسے جلوس کنونشن ہی ہے، یا حکومت کے ساتھ کوئی بات چیت، کسی قوت کے ساتھ کوئی بات چیت کا راستہ جو ہے وہ بھی اختیار کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، میں اپنی اور اپنی جماعت کی طرف سے بات کرنا چاہوں گا کہ اس وقت ہم کس پہ اعتماد کریں. بات چیت تو ہوتی ہے تب جب آپ اس پہ اعتماد کر سکیں، ان کی کوئی ایک زبان ہو، وہ کوئی بیٹھ کر آپ کے ساتھ. اور کون کرے گا بات چیت؟ کون کرے گا؟ وزیر اعظم کرے گا، صدر مملکت کرے گا. ابھی تو یہ معلوم نہیں کون بات چیت کرے گا، کس کے ساتھ کرے گا. تو اعتماد کا کیا ماحول موجود ہے یا نہیں؟ تو یہ چیزیں جو ہیں ہم سے سوال کرنے کی نہیں ہیں، بلکہ ان لوگوں سے سوال کرنے کی ہیں جس کے بارے میں آپ کہتے ہیں. ماضی میں ہم نے دیکھا تھا کہ جمہوریت کے بچاؤ کے لیے آپ نکل آئے تھے، جمہوریت کے بچاؤ کے لیے دھرنے بھی دیے گئے، پی ڈی ایم بھی بن گیا. اس کے بعد جب حکومت آئی تو خاموشی اختیار کر لی گئی. تو کیا اس وقت بھی اگر اس طرح کی تحریک کا آغاز ہو جاتا ہے، سڑکوں پر بھی نکلتے ہیں اور پھر کہیں نہ کہیں سے آفر آ جاتی ہے، تو اس تحریک کو ختم تو نہیں کریں گے؟ اگر آپ کے پاس کوئی ایسے آفر کی خبر ہے تو مجھے بھی بتا دیں. آپ سے یہ سوال ہے کہ آج تحریک انصاف کا وفد یقیناً آپ کو احتجاجی تحریک میں شامل کرنے کے لیے آیا ہے اور مسلسل رابطوں کا سلسلہ بھی جاری ہے. کیا آپ کو آج تحریک انصاف نے منا لیا، یعنی ابھی منانے کا سلسلہ جاری ہے، یا آپ نے کوئی ایشورٹی مانگی ہے؟ ابھی منانے کا سلسلہ جاری ہے. مانگی گئی ہے کوئی بات چیت آگے رابطے بڑھانے کے لیے، شورٹی مانگی گئی ہے.
ज़ाहिर है जी, जब तक आप संजीदा उमूर पर या मुतनाज़ उमूर पर कोई बात तय करना चाहते हैं तो एक माहौल तो बनाना पड़ता है, तो इसको आप उसी का हिस्सा एक मिनट मैं एक पॉइंट मैं सिर्फ एक बात करना चाहता हूँ जी। मौलाना साहब भी बैठे हैं और खड़े हैं, तो इससे फायदा दो चीज़ें जो है ना हम यहाँ सपोर्ट करने आए हैं कि जो अदलिया के खिलाफ कैंपेन चला है और जिस तरह आज सेनेट में डिस्कशन हुई, हम उसकी मजम्मत करते हैं। अदलिया के ऊपर ये हमला है और हम समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जो प्रोसीडिंग हो रही है उसको जो है ना किल करने के लिए, उसको दबाव के सबूताज करने के लिए सब कुछ हो रहा है। हम मजम्मत भी करते हैं और हम सब जो है ना अपने जजेस के साथ है और हमें उम्मीद रखते हैं कि वो मेरिट के मुताबिक फैसले करें। और दूसरा अदलिया की जो बात है, अदलिया जी मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि क्या ये तवक्को की जा सकती है कि आप इमरान खान से मुलाकात के लिए अडियाला जाएंगे? आपको किसी ने एजेंडा हाथ में दिया हुआ है तो मुझे बता दो। मौलाना साहब ये बताइएगा कि जब तहरीक इंसाफ हुकूमत में थी तो अपोजिशन की जो जमातें थी वो आपकी छतरी के नीचे थी। आज वो जमातें जो है हुकूमत में है और तहरीक इंसाफ आपकी छतरी के नीचे आना चाह रही है, तो आप अपोजिशन में आके याद आते हैं इनको? ये सवाल अभी हमारे सामने नहीं है, हमारी पार्टी के सामने उसूल का है। अगर हमें 2018 के इलेक्शन पर एतमाद नहीं था तो हमारा मौक़िफ़ आपने देखा। आज वो हमारे दोस्त जो उस वक्त हमारे साथ तहरीक में थे, अगर उन्होंने इस इंतखाब के नताइज को तस्लीम किया है तो हम फिर भी अकेले होकर भी कहते हैं कि नहीं, गलत होता है। तो सोचो 2018 में गलत थी, वो आज 2024 में भी गलत है। अमर यूथ साहब आपसे सवाल है, ये बताइएगा कि आपने खान साहब ने साइफर को लहरा के कौम को बताया था कि ये अमेरिका की साजिश है कि मेरी हुकूमत गिराई गई। पिछले दिनों आपके वफद ने अमेरिकी सफीर साहब की मुलाकात हुई है, वो भी कौम को बता दे किस पैराई में मुलाकात हुई है। दूसरा बहुत अच्छा, एक सवाल पूरा होने दें। असद कैसर साहब ने भी कहा कि अदलिया के जो तनकीद हो रही है हम उसके खिलाफ खड़े हैं। हम ये देखते हैं कि जो भी हुकूमत में होते हैं वो अदलिया के साथ होते हैं, जो अपोजिशन में होते हैं वो, जब आपका दौर हुकूमत था तो आपके दौर हुकूमत में भी ऐसे फैसले हैं कि जिन्होंने अपोजिशन ने उस पर तनकीद की और आपने साथ दिया, क्या कहेंगे? सबसे पहली बात, ये बड़ा अच्छा सवाल है, मुझे खुशी आपने पूछा। सबसे पहले साइफर के हवाले से, वो इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 जस्टिस साहिबान उसको सुन रहे हैं और जो रोज़ाना के मतलब हवाले से वहाँ पे जो रिमार्क्स और चीज़ें आ रही हैं, तो हुकूमत जो है इस वक्त वो खुद अपनी वहाँ पे कब्र खोदने में बड़ी तेज़ लगी हुई है और साइफर का केस जो है वो इंशाअल्लाह ताला खुद ब खुद दफन हो जाएगा। दफन हो चुका है, सिर्फ उसका डिसीजन बाकी है। वहाँ पे उस केस में कुछ है ही नहीं और वो एक बोगस केस है, नंबर 1। नंबर 2, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का वाज़े मौक़िफ़ था उस वक्त भी, आज भी हम लोग उसकी तायद करते हैं। नंबर 3, अमेरिकन सफ़ीर जो हमारे पास हमें मिलने के लिए आया था, वो वज़ीर आज़म से भी मिला था। उसी ख़त के अंदर 3 अशख़ास का उसने लिखा था, फ़ॉरेन ऑफिस को, वज़ीर आज़म को, स्पीकर कौमी असम्बली को और लीडर ऑफ द अपोजिशन को। और वो ख़त उसने लिखा था कि ये एक रूटीन की मुलाकात होती है मुख्तलिफ जो आपके रियासत के इदारे होते हैं उनके साथ, उनके जो आपके एग्जेक्टिव के होते हैं और या पार्लियामेंट के होते हैं। तीसरा सवाल का जवाब आपका ये है कि उसके साथ जो गुफ्तशनीद हुई इत्तेफाक के साथ, मेरे भाई असद कैसर साहब भी उसमें मौजूद थे। वहाँ पे वाज़े तौर पे हमने अमेरिकन सफ़ीर को एक बात से बावर कराया कि पाकिस्तान एक आज़ादाना, एक खुद मुख्तार मुल्क है। यहाँ पे हम लोग आइन और कानून की बालादस्ती चाहते हैं, किसी मुल्क की मुदाखलत यहाँ पे नहीं चाहते हैं। आइन और कानून की बालादस्ती होगी तो बैनुल-अक़वामी दुनिया की जो कंपनियां और इदारे हैं वो आके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगी, यहाँ पे सरमायाकारी करेंगी। और ये चीज़ नहीं होगी तो जो मर्जी आप कर लें, यहाँ पे आपकी न इन्वेस्टमेंट या सरमायाकारी होगी, न खुशहाली होगी। और इस वक्त आप देख लें कि पाकिस्तान की मईशत में जो आपकी अंदरून मुल्क के जो सरमायाकारी है वो एक साल में 86% जो है वो सुकड़ चुकी है और अफराद ज़ारा आप देख लें आसमान पे चली गई है और यहाँ पे हुकूमत के हाथ कुछ नहीं है इस वक्त। सबका फाटा में सिर्फ 7 टारगेट किलिंग के वाक़यात हुए हैं। उसके अलावा इस्लामाबाद में भी शीम मेल ने मतलब जिस तरह के पिचाई का तर्जुमान पर हमला किया है। तो इस तरह की ये जो चीज़ें चल रही है, तो क्या आपके ख्याल में मौजूदा हुकूमत और बाकी जितने भी सिक्योरिटी के इदारे लोगों के तहफ़्फ़ुज़ में मुकम्मल तौर पर नाकाम है? रऊफ़ हसन साहब के ऊपर जो हमला हुआ है, सबसे मैं उसकी मजम्मत करता हूँ
और बिल्कुल हमारा यूब साहब की बात सही है कि बजाय इसके कि उस पर हमला करने वाले मुजरिमों का पीछा किया जाए, उनको गिरफ़्तार किया जाए, उनको कैफियत किरदार तक पहुँचाया जाए, उन्होंने वहाँ पर हमारे कारकुनों को गिरफ़्तार करने के लिए छापे मारे, तो ये मुनासिब बातें नहीं हैं और ये जमहूरियत और जमहूरी आज़ादी और इज़हार राय की आज़ादी पर एक सवालिया निशान बन जाता है। अब आप दोनों जो जमातें हैं इनके दरमियान हल तलब मामलात क्या हैं? जो आप लोगों का माजी है वो सारी दुनिया जानती है, तो अब ये बताएं कि क्या कोई चांस है कि आप दोनों मिलके किसी जदोजहद की तरफ इकट्ठे वो जाएंगे? मैं आपको अकेले में बता दूंगा। एक चीज मैं आपको आखिरी में बता देता हूँ, यहाँ पे हमारी पश्तो एक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं मौलाना फजल रहमान साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि बहुत मोहब्बत से, बहुत खुले दिल से उन्होंने हमें वेलकम किया और हमारे जो इश्यूज़ हैं, जो हमारे मुश्तरकात हैं, उस पर हमारी डिस्कशन रही। ख़ासकर जो इस वक्त मुल्क में जो है ना आइन मातल है और इस वक्त एक बनाना रिपब्लिक ये मुल्क बनता जा रहा है और जो इस वक्त आज़ादी राय पे जो कदरें लग रही है और जो कानून पास हो रहे हैं और जो असम्बली में भी सहाफ़ियों पर पाबंदी लगाई गई है, सारा डिस्कशन हमारे हुए हैं। और ख़ासकर जो पंजाब में गंदम क्राइसिस हैं, जो बहुत बड़े हमारे किसान परेशान हैं और पाटा और फाटा में जो नई टैक्स के निपास की बात हो रही है और वैसे भी वहाँ वार जोन है, वहाँ कोई मतलब मुमकिन नहीं है कि इकॉनमी वैसे भी वहाँ बैठ गई है। तो इस सारे डिस्कशन पे हमारे मुश्तरकात हैं और इंशाल्लाह इस पे हम मुश्तरक जद्दोजहद करेंगे। बाकी जो है ना अपनी पार्टियों को मज़ीद भी जो है ना ऑन बोर्ड दिया जाएगा। कल खान साहब से भी इंशाल्लाह ताला मुरीफ साहब जाएंगे, मीटिंग करेंगे, मौलाना साहब भी अपने शूरा में जो है ना चीज़ों को। लेकिन एक बात क्लियर है कि आइन और कानून की बालादस्ती के लिए हम तमाम तबकों को एक होना पड़ेगा। इस वक्त इस मुल्क में कोई रास्ता और नहीं है, मुल्क इस तरह नहीं चलाया जा सकते जहाँ मुल्क में आप किसी कानून में खातिर में नहीं लाते। यानी जो रोपसन साहब के साथ हुआ है, क्या एक उस मुल्क में हो सकता है जहाँ कानून हो, जहाँ कानून की हुक्मरानी हो? ये तो क्लियर मैसेज देते हैं कि इस मुल्क में ताकत का कानून है, जंगल का कानून है। तो इसको हम मजम्मत करते हैं और इंशाअल्लाह ताला मौलाना साहब को तो अल्लाह ताला ने बड़ी एक हिम्मत दी है, ताकत दी है और हमारी ख्वाहिश है कि इस ताकत और इस हिम्मत को हम इस मुल्क के लिए, कौम के लिए इस्तेमाल करें। और ये जो इस वक्त जंग जारी है, ये सिर्फ किसी हुकूमत को गिराने, किसी को लाने की नहीं है, बल्कि कानून की अमलदारी कायम करने के लिए है। तो इंशाअल्लाह ताला हम उम्मीद रखते हैं कि इस जद्दोजहद में हम आगे बढ़ेंगे, इस मुल्क को इस क्राइसिस से निकालेंगे। मुल्क तब आगे बढ़ेगा जब मुल्क में कानून और आइन की हुक्मरानी होगी, तब इकॉनमी स्टेबल होगी। जब तक मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी नहीं होती तो कोई तस्वर नहीं कर सकता कि यहाँ इकॉनमी बूस्ट हो जाएगी।